Good evening, student. Let me introduce myself. My name is Dr. Anshul Vajpayee. I have done PhD from Banaras Hindu University in history subject. I have huge experience of teaching, more than 15 years as a professor in Indian universities and some foreign universities also. I have been teaching for civil services aspirants since last more than 10 years. So today I have decided to discuss on a controversial topic of history, that is the decline of Indus Valley civilization. Decline of Indus Valley civilization. This is decline of Indus Valley civilization. Let me share the screen so that decline of Indus Valley civilization. Why I decided to choose this topic? Let me explain these things. First is that there are many controversy regarding this topic. Many scholars stated that the particular regions were responsible for the declination of Indus Valley civilization, while some scholars said that particular other regions were responsible for the declination of Indus Valley civilization. There are more than 6-7 regions were explained by various scholars for the Indus Valley civilizations, but for the declination of Indus Valley civilization. But if anybody asked to you that in your site which was the appropriate region, which was or were the appropriate region for the declination of IVC pupil, then what will be your answer? Can you explain the regions of IVC with strong evidence, strong arguments? So here we will be discussing in this regard. Before starting the topic, let me explain the term declination. Decline. What is the decline? What is the decline of a culture? What do you mean with declination of the civilization or culture? Remember these things, that declination means there were several fundamental cultural elements existed during IVC. IVC means Indus Valley civilization, and those cultural elements had disappeared during later phase of IVC. Did you get the things? I said that there were several cultural elements existed during Indus Valley civilization, and those cultural elements had disappeared during the course of time, during the last phase of the Indus Valley civilization. I will explain something in Hindi also. I will speak Hindi and English both. Everything I will repeat in English and everything I will repeat in Hindi. कहने का मतलब यह है कि there were certain cultural elements, कुछ ऐसे सांस्कृतिक तत्व थे इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोगों के, आईबीसी लोगों के, कि वो लेटर फेज आते आते, लास्ट फेज आते आते, अंतिम चरण आते आते, they had disappeared, वो खत्म हो गए.
वो खत्म हो गया, एंड सेवरल न्यू एलिमेंट्स दोज वी कुड सीन इन लेटर फेज, और अंतिम अवस्था में कुछ नए तत्व जुड़ गए, एंड सेवरल एलिमेंट्स विच वर द रूट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ IBC pupil, those elements continued in culture up to now. और कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो मौलिक विशेषता थे, वो अभी तक हमारी संस्कृति में है. Then the urban characteristics or cultural elements related to urbanization of Indus Valley civilization, those elements had disappeared. जो एलिमेंट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन की संस्कृति से संबंधित थे, नगरी संस्कृति से संबंधित थे, दो एलिमेंट है डिसअपियर्ड. वो एलिमेंट्स, वो तत्व डिसअपियर हुए. इसी को बहुत से विद्वानों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन मान लिया है. बहुत से विद्वानों ने इसी को डिक्लिनेशन मान लिया है, और उन्होंने कहा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वन टाइम इट वाज ऑन पीक एंड आफ्टर दैट इट स्टार्टेड टू डिक्लाइन, और फाइनली ये डिक्लाइन कर गई 1750 आते आते. फिर हम दोबारा इस चीज को रिपीट कर रहे हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय द डिक्लिनेशन? डिक्लिनेशन मीन्स देयर वर सेवरल कल्चरल एलिमेंट्स ऑफ IBC pupil. Those cultural elements were related with the urbanization of Indus Valley pupil. Those elements had disappeared during the course of time, during the last phase of the IBC. जो सांस्कृतिक तत्व जो उनके अर्बनाइजेशन से संबंधित थे, वो तत्व इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतिम अवस्था में आते आते डिसअपियर हो गए, खत्म हो गए. इसीलिए उनको हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन माना है. तो दरअसल में संस्कृति कभी खत्म नहीं होती. इनफैक्ट सिविलाइजेशन कैन नेवर एंड. इट जस्ट कल्चर और सिविलाइजेशन इज जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. संस्कृति कभी नष्ट नहीं होती, ये ट्रांसफॉर्म होती है, ये बदलती है एक जगह से, एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में ये कन्वर्ट होती है. संस्कृति कभी खत्म नहीं हो सकती, जड़ से खत्म नहीं हो सकती, ये कन्वर्ट होती है. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थी वो अर्बनाइजेशन की थी, वो नगरीकरण की थी, और बाद में आते आते ये रूरल कल्चर में बदल गई. इसी को स्कॉलर्स ने डिक्लिनेशन बोला है, इसी को इंडस वैली का पतन बोला है. ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कल्चर हैज बीन स्टेटेड एज द डिक्लिनेशन ऑफ IBC pupil, डिक्लिनेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. अब हम यहां तक आप लोगों के क्लियर हो चुका होगा कि डिक्लिनेशन का मीनिंग क्या है. डिक्लिनेशन हम कहे किसको रहे, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ऐसा क्या हो गया जिसको हम कह रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर गई. तो सांस्कृतिक तत्व, इसके कुछ सांस्कृतिक तत्व डिसअपियर हो गए थे, इसी को, और वो सांस्कृतिक तत्व इसके अर्बनाइजेशन से संबंधित थे, इसके नगरीकरण से संबंधित है, इसीलिए इसको हम डिक्लिनेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल देते हैं. इसको क्लियर? अब इसकी नेक्स्ट स्लाइड हम ओपन करते हैं. तो हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे एलिमेंट, सारे कल्चरल एलिमेंट इसके डिसअपियर हो गए. कुछ कल्चरल एलिमेंट इसके बने भी रहते, बहुत से, अभी हम डिस्कस करेंगे इसको, जो कल्चरल एलिमेंट्स बने भी रहते. अब हमें ये जानना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इसके जो डिक्लिनेशन है, जिसको अभी हम डिफाइन कर चुके हैं, आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड द टर्म, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द टर्म डिक्लिनेशन. इस डिक्लिनेशन के पीछे क्या कारण थे, इस पतन के पीछे क्या कारण थे? जनरली देयर आर टू व्यूज आर फेमस इन दिस रिगार्ड. पहला है फॉरेन इन्वेजन, विदेशी आक्रमण. पहला है फॉरेन इन्वेजन,
और दूसरा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरण निम्नीकरण। फॉरेन इन्वेजन को बहुत से स्कॉलर्स ने स्टार्टिंग पीरियड में माना। मैनी स्कॉलर्स considered one of the main reason of the declination of Indus Valley civilization, that was foreign invasion. They explained that the people of abroad, mainly from Middle Asia, they invaded and conquered Indus Valley people, and they established their own culture, and this was the reason of the declination of Indus Valley people. उन्होंने बताया कि बहुत बाहरी संस्कृति भारत पर आई, आक्रमण की और जीत लिया यहाँ की संस्कृति को और अपनी संस्कृति को यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया। बट दे कुड नॉट एक्सप्लेन, वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वेदर द इन्वेजन अकर्ड फॉर वन टाइम और इन्वेजन कंटिन्यूड फॉर सेवरल ईयर्स। पहला, whether the declination of Indus Valley cities, it was sudden declination or it was sudden and single, or it was gradual declination for several years. Whether the one city had been conquered or destroyed by the foreign invaders, or entire Indus Valley civilization, all the cities they were conquered or invaded by the इंडस वैली पीपल। वो इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्या जो इन्वेजन था, ये इन्वेजन सडन हुआ, एक साथ हुआ, एक बार में और एक ही बार हुआ और पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया, या ये जो इन्वेजन है ये ग्रेजुअल है और कई वर्षों तक चलता रहा, या इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन सडन हो गया, तुरंत हो गया और एक बार में इसका पूरा पतन होगा, पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन सपाट हो गई, खत्म हो गई, या इसका पतन ग्रेजुअली चलता रहा। ये 4-5 क्वेश्चन है जिनको ये लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जो फॉरेन इन्वेजन कहते हैं। हालांकि फॉरेन इन्वेजन के एविडेंस के लिए दे एक्सप्लेन सेवरल थिंग्स। लिसन दिस कॉन्सेप्ट केयरफुली। इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, बिकॉज व्हाट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग हियर you will not get such explanation anywhere। चाहे कोई भी YouTube चैनल आप देख लीजिए, कहीं पे भी आपको ये एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। तो ध्यान से आपको समझना होगा कि फॉरेन इन्वेजन के संबंध में इन्होंने क्या एविडेंसेस दिए, कौन से एविडेंसेस। तो दोनों प्रकार के दिए इन्होंने, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी दिए, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी दिए, मतलब पुरातात्विक साक्ष्य भी दिए इन्होंने, और लिटरेरी एविडेंसेस भी दिए, जिनका भी हम डिस्कस करेंगे। जो पुरातात्विक साक्ष्य दिए, उसमें इन्होंने ये बोलने की कोशिश की, ये समझाने की कोशिश की कि हड़प्पा से और मोहनजोदारो दोनों जगह से बहुत बड़ी मात्रा में स्केलेटन्स मिले हैं, खासतौर से मोहनजोदारो बहुत बड़ी मात्रा में डेड बॉडीज मिली हैं। जैसे अभी हम आपको एक फिगर से दिखाना भी चाहते हैं, ये देखिए डेड बॉडीज मिली बहुत सी। ये जो डेड बॉडीज जो मिली हैं, ये सारी आप डेड बॉडीज देखिए, ये डेड बॉडीज मिली है। ये फिगर कहीं पे भी मिल जाएगा, बुक्स में भी है आपके। तो ये जो डेड बॉडीज हैं, ये देखो पास में आड़ी तिरछी डेड बॉडीज हैं। दे आर नॉट इन सीक्वेंस, दे आर नॉट वेल अरेंज्ड, so we cannot say that they were systematically engraved, they were systematically इनको दफन किया गया, ये नहीं, ये ऐसा ही लग रहा कि इनको मारा गया, they were killed, they were massacred। तो एक तो ये मोहनजोदारो और हड़प्पा से। मोहनजोदारो में जो ये जो मस्केर है, स्केलेटन्स है, ये भी सिंगल घटना नहीं है, ये भी एक पर्टिकुलर लेयर के रूप में मिलती है, यानी ये ग्रेजुअल इंसिडेंट्स कई बार हुई थी, मल्टीपल इंसिडेंट्स है। स्केलेटन का मिलना है, ये
केवल एक लेयर से नहीं मिलते हैं। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में पुरातात्विक जो उत्खनन है उसमें केवल सिंगल लेयर्स नहीं मिलते, दे वर फाउंड फ्रॉम डिफरेंट लेयर्स, अलग अलग लेयर में मिलते हैं। इसका मतलब कई बार ये मस्कर हुआ होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसका मतलब कई बार ये मस्कर हुआ होगा। तो फॉरेन इन्वेजन में एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ये दिए, हड़प्पा के स्केलेटन्स और मोहनजोदाड़ो के स्केलेटन्स। इसके अलावा ये कुछ लिटरेरी एविडेंसेस भी दिए, जिनको हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी कह सकते हैं। और वो जो लिटरेरी एविडेंस है वो इन्होंने ऋग्वेद से ही निकाला हुआ है, ऋग्वेद से। तो वो क्या है, वो लिटरेरी एविडेंसेस है कि देखिए हड़प्पा, ऋग्वेद में एक स्टोरी है, देयर इज ए स्टोरी, देयर इज ए एक्सप्लेनेशन इन ऋग्वेदा दैट देयर वाज ए पर्सन कॉल्ड पुरंदर। पुरंदर मीन्स destroyer of the fort or city. Purandar attacked on Haryupia and destroyed it. There is a description that Purandar attacked on Haryupia and destroyed it. पुरंदर मीन्स इंद्र, इंद्र को हम पुरंदर भी कहते हैं। इंद्र का मतलब होता है पुरंदर का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट। पुर मीन्स फोर्ट और सिटी, एंड सिटी एंड फोर्ट, दीज टू वर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। फोर्ट और सिटी ये दोनों फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और हरियूपिया, मैनी स्कॉलर्स इक्वेटेड हरियूपिया विद हड़प्पा, और बहुत से स्कॉलर्स ने हरियूपिया को हड़प्पा से इक्वेट कर दिया। हड़प्पा वाज आइडेंटिफाइड एज द हरियूपिया, हरियूपिया एक ही कर दिया उन्होंने। और ये जो फोर्ट और सिटी जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है आईबीसी लोगों की, इसको डिस्ट्रॉय करने की बात कही गई है। इसका मतलब इंद्र, that was he was the foreigner, he was Aryan, he attacked on Indus Valley civilization, Indus Valley sites, mainly Mohenjo-daro, and destroyed and killed all the people of Indus Valley. So on the basis of circumstantial evidences as well as the archaeological evidences, many scholars in starting period they tried to explain the reason behind the declination of Indus Valley civilization was foreign invasion. शुरुआती दौर में जितने भी विद्वान थे उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन के कारणों में विदेशी आक्रमण को ढूंढा और ये प्रयास किया ये सिद्ध करने का कि विदेशी आक्रमण की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन नष्ट हो गई। बट लेकिन they could not explain, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए that whether the entire civilization from Manda to Daimabad, Sutka-Gandu to Alamgirpur, entire such vast civilization could be finished by any invasion. ये अपने आप में ताज्जुब वाली बात है। Can any civilization could any civilization be finished by invasion only? क्या कोई भी सभ्यता इन्वेजन से खत्म हो जाएगी? इतनी बड़ी, इतनी वास्ट सिविलाइजेशन जिसका ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन है मांडा, कश्मीर से दाइमाबाद तक, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन है आपका सुत्का-गेंडोर से आलमगीरपुर तक, इतनी वास्ट सिविलाइजेशन कैसे खत्म हो जाएगी? ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और फिर हमने अभी कुछ क्वेश्चंस और उठाए थे, या ये इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वेदर दिस वाज सडन और सिंगल, दिस वाज ग्रेजुअल इन्वेजन, क्या था? सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाए। और जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर सडन मान लें कालीबंगा के एविडेंस से, तो मोहनजोदारो सडन नहीं लगता, सडन नहीं लगता। तो ये अपने आप में, ये जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया फॉरेन इन्वेजन का, ये अपने आप में इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट है। फिर दूसरा, जो लेटेस्ट स्कॉलर्स हैं जो
इसके बाद फॉरेन इन्वेजन को जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो उन्होंने एक इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन वाला कॉन्सेप्ट लाया, और ये जेन्युइन है, ये काफी हद तक सही है। कैसे, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज को कैसे ये सही है। देखिए अर्बनाइजेशन जो होता है, ये देखो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन यहां तक है, ये पूरी यहां तक है, और इनफैक्ट महाराष्ट्र तक है, ये पूरी यहां तक है आपका, यहां तक ये है, ये सब ठीक है, ये हमने मैप के जरिए से आप एक बार देख भी लो, यहां तक है आईबीसी। एक हम चीज आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वो ये है कि अर्बनाइजेशन जो होता है, नगरीकरण होता है, नगरीकरण होता है, उसकी कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होती है। शहरीकरण जो होता है उसकी कुछ मौलिक विशेषताएं होती हैं। द urbanization has several fundamental characteristics that there is a peak of the urbanization. After the peak, urbanization always starts to decline. Remember this statement. अर्बनाइजेशन का एक पीक होता है, और आफ्टर व्हेन इट रीच अर्बनाइजेशन रीचेज ऑन इट्स पीक, आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन। सैचुरेट नहीं करता है, अर्बनाइजेशन एक बार पीक पे पहुंचा तो ये डिक्लाइन होगा ही होगा। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज अर्बनाइजेशन जो है, द रीजन बिहाइंड द अर्बनाइजेशन इज द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ध्यान समझना, नेचुरल रिसोर्सेस, द रीजन बिहाइंड द अर्बनाइजेशन इज नेचुरल रिसोर्सेस। इसको हम प्रेजेंट सिनारियो में भी देख सकते हैं। द रीजन बिहाइंड अर्बनाइजेशन इज एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। हम जो भी तरक्की करते हैं, जो भी प्रोग्रेस करते हैं, इसके पीछे नेचुरल रिसोर्सेस है, लेकिन ये एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस शुड बी इन बैलेंस्ड वे। अर्बनाइजेशन और नेचुरल रिसोर्सेस के एक्सप्लॉइटेशन के बीच में एक इक्विलिब्रियम होनी चाहिए, एक इक्विलिब्रियम होनी चाहिए। अगर हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द रिसोर्सेस करेंगे, जैसा कि करते हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द रिसोर्सेस करेंगे, इट मींस वी विल बी वर्किंग अगेंस्ट द नेचर। और अगर आप नेचर के अगेंस्ट काम करेंगे तो नेचर विल टेक रिवेंज। रिमेंबर दिस थिंग। तो प्रकृति आपसे बदला लेती है। तो अर्बनाइजेशन, कहीं पर भी अर्बनाइजेशन होगा, वहां पर नेचुरल रिसोर्सेस का ओवर एक्सप्लॉइटेशन होगा ही होगा। इट मींस द ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस वाज द ऑब्वियस इंसिडेंट ऑफ द अर्बनाइजेशन ऑफ इंडस वैली प्यूपिल। इंडस वैली प्यूपिल में जो अर्बनाइजेशन हुआ, उसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेस का एक्सेस एक्सप्लॉइटेशन हुआ भी होगा। इसीलिए आज भी हम लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं। आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक टर्म सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ पे इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ एनीथिंग कीपिंग in your mind that the resource should not be destroyed. ऐसा डेवलपमेंट करो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कि आपका रिसोर्स खत्म ना हो। लेकिन उस समय ये जो इक्विलिब्रियम है डेवलपमेंट में और एक्सप्लॉइटेशन में, इट शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट शुड नॉट बी बैनिश्ड। ये नहीं खत्म होना चाहिए। इंडस वैली पीपल, I think even I am not saying that they were not aware with the ecological balance, they were not aware with the such type of disaster. Even presently we are aware with the consequences of
environmental degradation, but still we are doing so for our own comfort. क्या हम ये नहीं जानते कि if we are using the ACs, it will be the main cause of global warming और environmental degradation होगा और natural disasters आएंगे? We know, all of us know, but still we are doing only for our own comfort. So on the basis of this concept, we cannot say that Indus Valley people, they were not aware with the environmental conservation. Even they were more aware with environmental conservation in comparison to present days. They knew the importance of people. They knew the importance of Tulsi. They knew the importance of cleaning system. Or in the cleanliness, all the civilizations of the world were lagging behind with IBC. Still, we are not equal to the characteristics of cleanliness of IBC people. We should follow whatever they adopted. Anyway, leave it. So here I would like to explain that the exploitation of natural resources is nothing. It is the obvious result of the extreme urbanization. It is the obvious result of the highest urbanization. जो प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन हुआ वो कोई नई चीज नहीं है, वो अर्बनाइजेशन का ही एक परिणाम है, ये स्वाभाविक परिणाम है. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, दे वर अर्बन पीपल, ऑब्वियसली दे एक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्सेस वेरी वेल. बहुत अच्छे से इन्होंने नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट किया. और इस एक्सेस एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस, अगर नेचुरल रिसोर्सेस का आप एक्सेस एक्सप्लॉइटेशन करेंगे तो क्लाइमेट चेंज होगा ही होगा, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होगा, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होगा. और ये इस पर्यावरण निम्नीकरण के कारण नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे. ये यूनिवर्सल ट्रुथ है. आज भी जो अर्थक्वेक आता है, जो आप एक सडन चेंजेज इन एटमॉस्फेयर आप देख लेते हैं, एकदम गर्मी भयंकर पड़ने लग गई अभी होली से पहले, तो आप ये भी आप अनुभव कर रहे होंगे. तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. ऑन who are the responsible for the global warming? Just we are the responsible for global warming. Even we know that the impact of global warming. जानते हैं, ऐसा थोड़ी हम जानते नहीं है. We know, but still we are doing so. Same thing happened with Indus Valley people. They knew, they were aware with the consequences of excess exploitation of the natural resources. Still they did, and and after that, several disasters occurred, and those disasters were flood. कहीं पे फ्लड आई, अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक की बाद फिर फ्लड आया, कहीं पे रिवर्स चेंजेड इट्स पाथ, चेंजेड देयर पाथ. नदियों ने अपने रास्ते बदले. Because of these natural disasters, the subsistence base of the IBC people had changed, declined. And subsistence base, इससे पहले क्या था उनका? इससे पहले था trade. Now there are the evidences of declination in international and inland trade. When the rivers changed their path, earthquake occurred, flood occurred. In this situation, they could not produce crops, and the trade routes, those trade routes might be destroyed. वो क्राफ्ट भी उतनी उत्पादन नहीं कर पाए, फ्लड और इन सारे कारणों से. और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है,
ट्रेड का वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी खत्म हो गया होगा। जैसे सड़कें ने रिवर्स ने रास्ता चेंज कर लिया, तो ये जो जो रास्ता था जो रिवर्स के थ्रू जो इनलैंड ट्रेड करते थे, डिजास्टर ये अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक की वजह से जो लैंड ऊपर उठ गई थी थोड़ी सी, खास तौर से लोथल वाली, यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड प्रभावित हुआ होगा। तो एनीवे, तो दीज टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स बिकेम द रीजन ऑफ द डिक्लिनेशन इन ट्रेड आल्सो। तो जो ट्रेड इनका खत्म हुआ, तो इनका सब्सिस्टेंस बेस क्या था इनका, व्हाट वाज द सब्सिस्टेंस बेस ऑफ आईबीसी पीपल, दैट वाज ट्रेड ओनली, ट्रेड मेनली। हालांकि ट्रेड के पीछे क्या रीजन था, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सेस प्रोडक्शन था इनका ट्रेड के पीछे। तो एग्रीकल्चर में एक्सेस प्रोडक्शन नहीं हो पाया, ट्रेड खत्म हुआ इन सब रीजन से, और पीपल स्टार्टेड टू माइग्रेट फॉर द सेफेस्ट प्लेसेस, और लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया सेफेस्ट प्लेसेस की तरफ। यहां तक क्लियर है। एक चीज हम आपको और बताना चाहेंगे कि लोग जब भी इस तरीके से नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, तो एक और चीज होती है, वो होती है पेंडेमिक, वो होती है महामारी। और ये पेंडेमिक इज आल्सो ए ऑब्वियस इंसिडेंट आफ्टर द नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर्स के बाद पेंडेमिक एक ऑब्वियस इंसिडेंट होती है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो पेंडेमिक आई होगी और पीपल स्टार्टेड टू मूव टू माइग्रेट फॉर द सेफेस्ट प्लेसेस। इन सच सिचुएशन, इन सच प्रोसेस, some people of another culture, they interacted with IBC people. इस प्रक्रिया में बाहरी संस्कृति के लोग, वो जो यहाँ की संस्कृति के लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ होगा, और इसका एविडेंस है हमारे पास। भगवानपुरा ये साइट ऑफ आईबीसी, मेनली हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी हरियाणा में है भगवानपुरा। यहाँ से पीजीडब्ल्यू मिले, पेंटेड ग्रेवेयर। पेंटेड ग्रेवेयर का मतलब होता है ये आर्यन की पोट्री है, आर्यन करस्ट्रक्टिक है, तो इसका मिलना, और ये इंडस साइट है, लेटर पीरियड की इंडस साइट है। तो लेटर पीरियड की इंडस साइट में पीजीडब्ल्यू का मिलना कि डिक्लाइनिंग फेज में पीजीडब्ल्यू वाले इनसे इंटरमीडिएट हुए होंगे, ये क्लियर। Did you get the things whatever I explained? I said that the site of Bhagwanpura site is the later Harappan site from where we received PGW, which is the characteristic of IBC people. It means the IBC people had intermingled with PGW people. तो ये भगवानपुरा से पता चलता है। तो when they interacted with when foreigners interacted with IBC people at the time of its declination, when the IBC people were migrating towards the safest places of India, mainly Gangetic Plain, the foreigners, they interacted since their culture was dominant. They were conflicting in nature, they were fighters, they were more strong. Obviously their culture dominated over the indigenous culture, क्योंकि वो ज्यादा शक्तिशाली थे, वो लड़ने भिड़ने वाले थे, कन्फ्लिक्ट, वो फाइटर थे, इसलिए उनकी जो संस्कृति थी, उनका जो कल्चर था, वो डोमिनेट कर गया इनके कल्चर। और टू रिमेंबर दिस पॉइंट आल्सो, two distinguished culture can never run parallelly. Remember this thing. दो अलग अलग संस्कृतियां कभी साथ साथ चल नहीं सकती. Either one culture has to substitute another one or interminglate with another one. या तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा या मिलना पड़ेगा. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, many elements of the IBC people could be seen in Rig Veda. In Rig Veda, they described about the Anaryans. Who were Anaryans? IBC people were Anaryans.
those who who believed in idol worship, who believed in ling puja, who believed in people and such type of things, वो इंडस वैली पीपल थे. अनारियंस, अनारियंस पर इंडस पीपल, इंडस वैली पीपल. इट मींस द आर्यंस एंड इंडस वैली in IBC people, they had intermingled, they might be interacted with each other. I am not saying that they invaded. Invasion is something different things, but it is quite possible that they might be interacted with IBC people. ये एकदम से सही हो सकता है कि वो लोग यहाँ के IBC पीपल से इंटरेक्ट किए हों, क्यों नहीं कर सकते? और वो कब किए? ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ द IBC पीपल, when because of the natural disaster, because of the pandemic, IBC people migrated towards the safest place. In such situation, they interminglated, they interacted, और उनकी कल्चर यहाँ पे ज्यादा प्रभावी हो गई. Many cultural elements Indus Valley people they had left behind. बहुत से सांस्कृतिक तत्व इंडस वैली पीपल ने पीछे छोड़ दिए. जैसे they left brick making technology, they left craft making technology, they left the skill of the town planning. These type of progressive things they had to leave. One of my students and many scholars, many teachers even, they are confused that how it is possible that they forget the town planning technique, they forget the brick making technique, है ना? आप भी एकदम सोच रहे होंगे ये कैसे संभव है. अगर वो लोग माइग्रेट किए, इधर लोग वही हैं, कुछ लोग बचे हुए हैं, वो माइग्रेट किए सेपरेट प्लेस, तो ये भूल कैसे गए? गंगेटिक प्लेन में बना लेते नगर, टाउन बना सकते थे. they could make town in Gangetic plain also. You are thinking in this regard. आप सोच रहे होंगे ये चीज कि वो नगर बना सकते थे. No, remember this thing. भाई, I am saying this. मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि those elements will be carry forward in your culture, which are or which would be utility, which would prove their utility in changing scenario. Remember this thing. Only those cultural elements will be carry forward in your culture, which would be utilized as per the changing scenario. केवल वही कल्चरल एलिमेंट्स कैरी फॉरवर्ड होंगे जो बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से, जिनकी अपनी यूटिलिटी होगी, जिनकी अपनी उपयोगिता होगी. ओनली यूटिलिटी वाले जो कल्चरल एलिमेंट्स होंगे, यूटिलिटी कैसी? चेंजिंग सिनारियो के हिसाब से जो यूटिलिटी होगी अगर आपके कल्चरल एलिमेंट्स की, वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे. ऐसा नहीं है. वी डिड नॉट फॉरगेट, हम अपनी बहुत सी चीजें भूले नहीं है. वी डिड नॉट फॉरगेट साड़ी और व्हाटएवर क्लोथिंग सिस्टम वी हैड अर्लियर. जनेऊ लगाना कान में, हम भूले नहीं अपनी इस संस्कृति को. वी न्यू, हम जानते थे. वी नो, हम जानते हैं. बट व्हाई वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग? बिकॉज many of the things, many of these practices have leave their utility in modern scenario. बहुत से ऐसी प्रैक्टिसेस है जिनकी आधुनिक समय में इनकी उपयोगिता खत्म हो गई है या कम पड़ गई है, या अलग, जैसे कोई खाली आदमी है उसके लिए हो सकता है वो लगाता भी हो उसके लिए. लेकिन एज ए टीचर, since I taught in various places in India and abroad, so it is very difficult to follow this practice. इसको बहुत कठिन है इस प्रैक्टिस को फॉलो करना, नहीं कर पाएंगे ना. तो इसकी यूटिलिटी खत्म हो गई. I left this practice. It doesn't mean that I could not do so. It doesn't mean that I do not know.
इसका मतलब ये नहीं कि मैं जानता नहीं हूं, मैं कर नहीं पाता, दोनों. सो दोज कल्चरल एलिमेंट्स who had no utility in changing scenario of late changing scenario during later Harappan phase, those cultural elements had disappeared. और कैसे इनकी यूटिलिटी खत्म हो गई थी? अब आप पूछोगे कैसे. The safest, which was the safest places? They mainly migrated toward Gangetic Plain, and at that time there was dense forest existed in Gangetic Plain. और गंगेटिक प्लेन में जहां पे ये पहुंचे थे वहां पे dense forest were there, and it was very difficult to cut the tree, make the forest for agricultural, make the forest for agricultural purpose. ये it was almost impossible काटना उसको, एग्रीकल्चर पर्पज से फॉरेस्ट को कट करना, मतलब लैंड एक प्लेन लैंड में कन्वर्ट कर देना. इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एट दैट टाइम. वी डिड नॉट नो अबाउट द आयरन टेक्नोलॉजी. वी वर अनअवेयर विद आयरन टेक्नोलॉजी. सो इन डेंस फॉरेस्ट which type of cultural elements would be survived? Only pastoral, only animal husbandry. So those people, Aryans, those who knew the animal husbandry, their culture survived. And Indus Valley people, they accepted their culture. Since they were more dominated, they were powerful, so we accepted their culture. So drastic change hua. So we can say conclusively, we can say that it was the transformation of the one cultural elements, several cultural elements into the several other cultural elements. So finally we can say that whatever we are saying that the Indus Valley civilization, declination of Indus Valley civilization, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लिनेशन नहीं था. इट वाज जस्ट डिसअपियरेंस ऑफ सेवरल characteristics related to the urbanization of IBC. And during the last phase of the IBC, those characteristics of urbanization had disappeared, and several new characteristics related to rural culture appeared. Even though some cultural elements still continued in the culture, जैसे लिंग पूजा, importance of water and other resources, importance of water, people, बरगद है ना, हम्प बुल की पूजा करना, पूर्वाल बैल की, पशुपति शिव है ना, these are still in our culture, still continued in our culture. तो आज भी हमारी संस्कृति में दिखाई पड़ती हैं. तो ये जो चीजें हैं ये कॉन्टिन्यूटी में बनी रही. केवल वही एलिमेंट्स खत्म हुए जो इनकी यूटिलिटी नहीं थी. बदलते हुए सिनारियो में जिसने अपनी यूटिलिटी खो दी वो डिसअपियर हो जाएगा. ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो वो कल्चरल एलिमेंट डिसअपियर हो गए, इन्होंने बदलते हुए सिनारियो में अपनी यूटिलिटी इन्होंने खो दी थी, तो इसलिए वो खत्म हो गया. इसके बाद तो हमें लगता है इसको जब हम डिक्टेट करा देंगे, या आप अगर इसको धीरे धीरे रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुन के डिक्टेट नोट्स बना सकते हैं तो बहुत अच्छे से आप इसको समझ जाएंगे. हम हमारे हिसाब से आपके कॉन्सेप्ट भी क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे. इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है यू कैन आस्क फ्रीली. ठीक है, आप एकदम निश्चिंत होकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं. और ये जो इंटरप्रिटेशन आपका ओरिजिनल होगा, मौलिक इंटरप्रिटेशन होगा, इसको आप एग्जाम में रख सकते हैं. थोड़ा क्वेश्चन आप कितना भी घुमा भी दे तब भी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. जैसे हमने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं जिनको आप अपने से लिखने की कोशिश करना, और लिखने के बाद एक बार लिख लेना और क्या. ठीक है, जैसे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमने पॉसिबल दिया, इसमें से एग्जाम में पूछ भी सकते हैं. आपके एडिटिव क्वेश्चन पूछ देते हैं, कई बार ऐसा होता है. ठीक है, और जो भी डायमेंशन हमने डिस्कस किए हैं उसी में से आपको लिखना पड़ेगा. पहला क्वेश्चन है डिस्कस द रीजंस ऑफ द डिक्लिनेशन ऑफ इंडस कल्चर, गिव द स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट योर लॉजिक. ये आपको बताना, ये भी आसान है. इसमें आप डिक्लेरेशन ऑफ इंडस वैली रीजन्स बताना है और मिक्स देना है. हमने देखो किसी के रीजन्स को क्रिटिसाइज एकदम से नहीं किया. आई नेवर एक्सप्लेन्ड अबाउट द फ्लड वाज ओनली रीजन, earthquake was only region, this was only region.
I explained each and every regions and the logic behind those phenomena, those natural disaster. And what was the logic? Logic was that all the disaster occurred just because of the climate change, which occurred because of the excess exploitation of the resources. और ये ऑब्वियस इंसिडेंट है एंड इट वाज द ऑब्वियस इंसिडेंट ऑफ द अर्बनाइजेशन. तो अर्बनाइजेशन जब भी पीक पे होगा तो ये डिक्लाइन भी करता है. अर्बनाइजेशन की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है. ठीक है, हम लोग इतना एक्सप्लॉइट कर देते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को ये जानते हुए कि डिक्लिनेशन होगा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, नेचुरल डिजास्टर आ सकते हैं, लेकिन तब भी करते हैं और होता ही, आप देख ही रहे हैं. एनीवे बताने की जरूरत नहीं, उत्तराखंड में क्या नेचुरल डिजास्टर देख लो कहीं भी. तो इसको आप लिख सकते हैं. आपको वेरियस रीजन्स बताने पड़ेंगे हल्का हल्का, और ये जो अपना लॉजिक देंगे उस पर एकदम से बहुत स्ट्रांग लॉजिक देना. अपने आपका सारा लॉजिक, कोई भी हवा में बात नहीं की हमने, सबके पीछे एविडेंस दिए हैं, सबके पीछे लॉजिक दिया. अगला क्वेश्चन है, environmental degradation was only reason of the declination of IBC. Will you can say that no, only reason, it was not only reason, it was one of the reason. RN intermigration can never be undermined. इसको हम कम नहीं आतेंगे. RN intermigration, I am not saying RN invasion. हम RN invasion नहीं कह रहे, फॉरेन कल्चर का इंटरमिग्रेशन कह रहे हैं. अगर बाई चांस RN इन्वेजन ना भी हुआ होता, ठीक है, तब भी डिक्लाइन कर ही जाता. क्यों? वहां पे जाके ये सारी चीजें भूल ही जाते हैं. लेकिन आर्यंस वर सेपरेट आइडेंटिटी. तो आर्यंस का इंटरमिग्रेशन तो 1500 बीसी में दिखाई देगा आपको. पीजीडब्ल्यू भगवानपुरा के साथ में, भगवानपुरा में पीजीडब्ल्यू का मिलना, ऋग्वेद में पूरा एक अलग लिटरेचर होना. तो आर्यंस, अनार्यंस और वर्ण सिस्टम, अनार्यंस को दस बना देना. तो आर्यंस तो सेपरेट आइडेंटिटी थी, फिर कहाँ से आई? तो वही यही लोग हैं आर्यंस. क्लियर है? और हालांकि यहाँ पे 3 कल्चर मिल रही है आपको. एक चीज और बता दें, शायद आपको नहीं मालूम हो. एक तो इंडस वैली वाले यहाँ पे आ रहे हैं, ये गंगा है. इंडस वैली वाले यहीं पे बाहर से आए, आर्यंस इंटरमीडिएट हुए. और यहाँ पे एक इंडिजिनियस कल्चर और है, पहले से एग्जिस्ट कर रही, वो है ओसीपी कल्चर. ओसीपी कल्चर शायद आप जानते होंगे. ओसीपी कल्चर का मतलब होता है जो कल्चर इंडस वैली के कंटेम्परेरी गंगेटिक प्लेन में इंडिजिनियस कल्चर थी. ये अलग तरीके के बर्तन बनाते थे, गेरुआ रंग के, ऑर्च कलर्ड पोट्री होती थी इनकी. तो ये तीनों कल्चर बाद में, ये सब आर्गनाइजेशन हो गया. फिर धीरे धीरे पूरे इंडिया का आर्गनाइजेशन होता है. वो आप आगे पढ़ेंगे भी, आपको बताएंगे इंडिया का आर्गनाइजेशन कैसे होता है, और आपको जैसे ये भी बताएंगे कि ओरिजिन कैसे हुआ था. एनीवे बाद में. तो अगला क्वेश्चन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इसको भी आप लिख सकते हैं. फिर अगला, आरएन इन्वेजन थ्योरी हैज फेल्ड टू एक्सप्लेन द डिक्लेरेशन ऑफ आईबीसी अप टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट. इसको आप कर लेंगे. आरएन इन्वेजन थ्योरी हैज बीन फेल्ड बट इट डजंट मीन दैट इंटरमिग्रेशन थ्योरी हैज बीन फेल्ड. आप उम्मीद है इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे. इफ यू फेस any time the problem of language pronunciation, you can ask the questions. And what if there is any little bit doubt in your mind regarding history, definitely you can ask. अगर आप पूछेंगे, I will explain. और आपके कॉन्सेप्ट अगर अच्छे होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ओरिजिनल होंगे, इंटरप्रिटेशन आपका यूनिक होगा, तो क्यों नहीं मार्क्स मिलेंगे आपको. डेफिनेटली यू कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स. ठीक है, तो बी बेनिफिटेड, इसका फायदा उठाइए आप हमारे एक्सपीरियंस का. एनीवे, ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट.